Yes, good morning, friends. Again, after a short break, now you are in online classes of chemistry. Here is Lomesh Sharma. After some topics of this chapter, haloalkanes and haloarenes, like nomenclature and IUPAC names of haloalkanes, preparation methods of haloalkanes, physical properties of haloalkanes, chemical properties of haloalkanes. In chemical properties, very important chemical properties, SN1 and SN2 mechanism or reaction, okay, and some important examples of nucleophilic substitution reaction. Now our next topic is elimination reaction. Elimination reaction, the word elimination means eliminate, remove, delete, okay. So what is the meaning of elimination? What is the meaning of elimination reaction? Listen carefully. When alcoholic KOH reacts with alkyl halide, HX molecule is removed by beta elimination and alkene is formed, okay. So two things are important here. The first one is HX molecule is removed, HX molecule is removed from here, and the formation of alkene, double bonded compound, is formed here by beta elimination reaction. Clear? By beta elimination reaction. So two reactants are there. First one is alcoholic KOH and second one is alkyl halide. We can also say that alcoholic KOH is a catalyst and alkyl halide is a main reactant. So in the presence of alcoholic KOH, okay, alkyl halide RX removed its HX molecule to form alkene. Now why it is known as beta elimination reaction? Okay, we can explain by with an example. RCH2 CH2Cl, here is a bond, okay. So halogen atom is attached with CH2 carbon atom which is known as alpha carbon atom. Always जब भी कोई हेलोजन एटम किसी कार्बन से अटैच होगा तो उसको हम अल्फा कार्बन एटम कहेंगे और उसके पास वाले को कहेंगे बीटा कार्बन एटम. क्लियर? सो from alpha carbon atom halogen is removed, that one is Cl. From beta carbon atom hydrogen is removed, okay. So it forms HCl. Elimination reaction, eliminate, HCl is eliminate to form alkene, RCH double bond CH2. Double bond is formed here. Here double bond is formed by the removal of H and Cl in the presence of alcoholic KOH. Okay, so alcoholic KOH removed the HX part from chloroalkane, okay, or from alkyl halide. Now why it is known as beta elimination reaction? Because from beta carbon beta hydrogen atom is removed. From beta carbon beta hydrogen atom is removed, so that's why it is known as beta elimination reaction. Again, why it is known as dehydrohalogenation reaction? Okay, because hydrogen and halogen is removed from this reaction, so that's why it is known as dehydrohalogenation reaction. Another example is this one, CH2CH2, okay, that is the CH3CH2Cl bond, CH3CH2Cl, okay, chloroethane. Alpha carbon atom is this one by which Cl is attached and beta carbon atom is this one, okay. So आपको क्या याद रखना है केवल कि अल्फा से निकलेगा X और बीटा से निकलेगा H. So HCl is removed here plus HCl is removed here and the main product is alkene, CH2 double bond CH2. So that is a beta elimination reaction, dehydrohalogenation reaction. Another topic is one, order of reactivity, which alkyl halide is more reactive towards elimination reaction. So always 3 degree alkyl halide is more reactive than 2 degree than 1 degree, okay. And Ri alkyl halide में भी कौन सा हेलोजन होगा तो ज़्यादा रिएक्शन इजी गोइंग होगी, तो वो है Ri, मतलब कि आयोडाइड. यू नो वेरी वेल, फ्रॉम अप टू डाउन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, okay. Iodine from up to down the atomic size increases, so maximum bond length is goes to Ri. So I is removed easily from the reactants. That's why Ri is more reactive, and R3, that means 3 degree alkyl halide is more reactive. Okay. Now in elimination reaction a very important rule is Sadjeff rule. That is a Sadjeff rule. Most important rule is Sadjeff rule, and in maximum time in board exam Sadjeff rule is there. What is the meaning of Sadjeff rule? We can explain by this example. CH3CH CH2CH3 Br, okay, that is a reactant in the presence of alcoholic KOH. Now अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि Br जिस कार्बन पर अटैच है तो उसको आप क्या कहोगे? Yes, very good, that is an alpha carbon atom. Okay, Sadjeff rule बना क्यों? Sadjeff rule बनने का रीज़न क्या है?
वो बनने का रीज़न ये है कि इस कंपाउंड के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट है, एक बीटा कार्बन ये वाला और एक बीटा कार्बन ये वाला। अल्फा के पास वाला बीटा होता है, तो एक बीटा वाला, एक बीटा कार्बन ये, 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन किस बीटा कार्बन से निकलेगा। ओके, अर्लियर एग्जाम्पल्स में आपने देखा था कि एक ही बीटा कार्बन था, तो वहाँ से हाइड्रोजन को निकलना था, लेकिन यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, हाइड्रोजन किस कार्बन से निकलेगा, हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सपोज आपने एक बार CH3 से हाइड्रोजन निकाला और एक बार आपने CH2 से हाइड्रोजन निकाला, तो इसके हिसाब से आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा 1 ब्यूटीन और एक मिलेगा 2 ब्यूटीन। ओके, देखिए 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन कब होता है, 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन और 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन कब होगा, अगर CH3, इस वाले CH3 से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हमें ये मिलेगा 1 ब्यूटीन। और अगर यहाँ से इस CH2 से, अगर इस वाले CH2 से अगर रिमूव होता है एक हाइड्रोजन, तो मिलेगा हमें 2 ब्यूटीन। Br को तो निकलना ही है अल्फा से, तो यहाँ पर 2 कंपाउंड मिले हैं, बट मेजर प्रोडक्ट इज 2 ब्यूटीन 81% एंड दैट वन इज ओनली 90%। ओके, सो वी कैन एक्सप्लेन सेटजेफुल बाय दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के होने के बाद सेटजेफुल बनाया गया कि 81% 2 ब्यूटीन क्यों बन रहा है। ओके, वाई इट इज फॉर्म्ड 81%, वाई इट इज फॉर्म्ड इन मैक्सिमम यील्ड। क्लियर? So now you have to write what is Setjeff rule. Please, you have to write according to this rule, the major product the major product of alkene is that on which maximum alkyl groups are present in the both side of double bond. मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दी बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। वह एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज़्यादा क्वांटिटी में एल्काइल ग्रुप होंगे, आर ग्रुप होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो 81% वाला एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, इसमें एक CH3 इधर प्रेजेंट है, एक CH3 इधर प्रेजेंट है, 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, लेकिन 19% वाले में डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, इसमें इस तरफ एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन इस तरफ एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, C2H5 वाला। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इसके अकॉर्डिंग 2 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ओके, ऑफ 81%। आपको बात समझ में आ गई। सेटजेफ रूल को एक बार वापस वीडियो को पीछे करके और आप लिख लेना, ये इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, जो मैं बोला वो आपके इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल से कराई जाए, यू नो वेरी वेल, दैट इज अ वेल नोन रिएक्शन ऑफ योर 11th क्लास which is known as Wood's reaction. You know very well, when 2 moles of alkyl halide RX, when 2 moles of alkyl halide react with in the presence of sodium, okay, react with sodium in the presence of dry ether, it form RR. okay, it form alkanes. हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो आपके पास में अगर एल्केन का फॉर्मेशन करना है आपको, तो उसकी वुड रिएक्शन करा सकते हो आप। CH3I Na plus CH3I, then it forms CH3, that means alkane. So with the help of alkane we can form the even number of products. Reaction with lithium, another reaction is reaction with lithium after sodium. CH3 CH2 Br react with lithium Li in the presence of ether, it forms CH3 CH2 Li. okay, and LiBr is removed, that means alkyl lithium is formed. एल्काइल लिथियम इज फॉर्म, दैट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में एक मेटल अटैच होता है, तो दैट इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बहुत बड़ी ब्रांच है ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड केमिस्ट्री की, इस पर लगभग PhD करते हैं। तो CH3 CH2 Cl, Li, दैट इज एन मेन कंपाउंड ऑफ लिथियम। अनदर रिएक्शन विद जिंक, reaction with zinc, dialkyl zinc, Franklin reagent is formed when haloalkane reacts with zinc metal. Very important chemical reagent, Franklin reagent, maximum time बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। ये देखिए CH3 CH2 Br, ये है आपके सामने RX, इसकी रिएक्शन आपने जिंक से कराई तो आपको बना गया CH3 CH2 Zn CH2 CH3, मतलब कि जिंक दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में आ जाएगा। ओके, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे डाईथाइल जिंक, या फिर इसका नाम होगा फ्रैंकलिन रिएजेंट। ओके, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके नेम पे है फ्रैंकलिन रिएजेंट। ZnBr टू रिमूव हो जाएगा। अनदर रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ ग्रिनियार्ड रिएजेंट, ग्रिनियार्ड रिएजेंट को बोलते हैं RMGX।
ओके, ग्रीनियर्ड रिएजेंट, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम ग्रीनियर्ड था, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो उसका नाम पे है ये RMGX ग्रीनियर्ड रिएजेंट। इसका फॉर्मेशन किया जाता है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके। व्हेन RX रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन सभी रिएक्शन में ड्राई ईथर का यूज इसलिए किया गया है बिकॉज दीज आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सो टू रिड्यूस द टेम्परेचर ड्राई ईथर इज यूज्ड। So RMGX is used. RMGX Grignard reagent, याद रखना, RMGX is a Grignard reagent. R is a alkyl group and X is a halogen atom. Maximum time X equal to Br. ओके, ग्रिग्नार्ड ने जिस कंपाउंड को डिस्कवर किया था वो Br के बेसिस पर किया था, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा यहाँ पर, RMGX या RMG-Br को हम कहेंगे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक और रिएक्शन यहाँ दे रखी है, देखो CH3I प्लस Mg, CH3 MgBr, MgI, तो MgBr और I दोनों फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकता है। नाउ रिएक्शन विद लेड सोडियम एलॉय, लेड सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, लेड सोडियम एलॉय से बनने वाली है। लेड सोडियम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, PbNa, लेड भी आ गया और सोडियम भी आ गया। इसके साथ में अगर RX की रिएक्शन कराई जाए तो हमें मिलता है TEL, जिसकी फुल फॉर्म है टेट्रा इथाइल लेड, C2H5 4Pb। ओके, देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, 4 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड हियर and 4 mole of PbNa is used here. Then tetraethyl lead is used. Tetraethyl lead, TEL, is very important chemical reagent. It is used in a petrochemical industries. Okay, petrochemical industries में TEL का यूज़ किया जाता है, ये इसका एक यूज़ है। ये भी केमिकल रिएक्शन है, किसके साथ में, मेटल के साथ में है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक आपने पढ़ ली, एलिमिनेशन आपने पढ़ ली, रिएक्शन विद मेटल्स आपने पढ़ ली, यह है रिडक्शन रिएक्शन। ओके, एल्केन्स आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। आपने पीछे भी एक बार वुड्स रिएक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन किया है। अनदर रिएक्शन इज एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन इज दिस वन, रिडक्शन। अगर किसी भी RX का C2H5Cl का आइस का रिडक्शन किया जाए ट्वाइस H के साथ में, देन इथेन इज फॉर्म्ड हियर, HCl इज रिमूव्ड एंड दैट रिएक्शन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो आपको नेम याद रखने पड़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स के, जो यहाँ लिखे हुए हैं। रिएजेंट्स आर यूज्ड फॉर रिडक्शन, जिंक प्लस HCl, इनमें से आप कोई भी यूज में ले सकते हो, सोडियम प्लस C2H5OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो एरो के ऊपर आपको ये लिखे हुए मिल सकते हैं। ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके, एल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा वो भी एल्केन्स होंगे। ठीक है, थैंक यू।